کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں. دونوں ایک بڑی سی دوربین کے ذریعے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تبھی انہیں تاروں کے بیچ چمکتا ہوا ایک الگ سا تارا دکھائی دیتا ہے جو کہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوتا. اب شروع میں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آسمان میں بنا ہوا کوئی اسٹیشن ہے، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ جو ان کے سر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، اس کی تصویر بنا لو، جس تصویر کو فوراً ڈاکٹر کے پاس سینڈ کر دو. پھر اگلے ہی دن یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس ان تصویروں کو بھیج دیتے ہیں. ان تصویروں کو دیکھتے ہی ڈاکٹر ایک دم سے کافی حیران رہ جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نقلی ستارہ یا پھر اسٹیشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے میٹیور، یعنی کہ ٹوٹتا ہوا خطرناک تارا، جس کا سائز بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور یہ کافی تیزی سے زمین کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی وہ زمین سے لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر ہی ہوتا ہے، جس وجہ سے اسے زمین تک پہنچنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر اس ساری معلومات کو ایک ڈسک کے اندر سیو کر لیتے. ڈاکٹر اس معلومات کو اپنے سینئرز تک پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تبھی بدقسمتی سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جہاں موقع پر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے. اب آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا ہے اور پورا 1 سال ہو جاتا ہے. اب 1 سال کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یو ایس میں خزانے کے جو آفیسر تھے، ان کے گھر کے باہر کھانے پینے کا اور ضرورت کا سارا سامان پڑا ہوا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آفیسر کہیں پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر. ایک رپورٹر جو کہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کو شک ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی اور ہی کہانی ہے، اسی لیے وہ فوراً خزانے کے اس آفیسر سے ملنے جاتا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آفیسر کہیں پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر. یہاں وہ رپورٹر اس آفیسر سے کہتی ہے کہ میں یہ بات بڑے اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کے آفس میں بہت ساری ایسی خفیہ ٹیلی فون لائنز ہیں جن کے ذریعے آپ ڈائریکٹ ریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں. آفیسر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ رپورٹر جب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو تبھی ایک دم سے اس کے چاروں طرف بہت ساری گاڑیاں جاتی ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے وہ اس کی گاڑی کو گھیر لیتی ہیں. اصل میں یہ انکوائری ٹیم کے آفیسرز ہوتے ہیں جن کو کہ گورنمنٹ نے بھیجا ہوتا ہے. یہاں وہ اس رپورٹر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اس کے پاس پریزیڈنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بات بھی، جو خبر بھی تمہیں پتا ہے تم اس کو پھیلانا مت. وہ رپورٹر مان جاتی ہے. پھر اب 2 دن کے بعد وہ رپورٹر پریزیڈنٹ کی کانفرنس میں جاتی ہے، جہاں پریزیڈنٹ بتاتے ہیں کہ اکثر ہماری زمین پر میٹیور یعنی کہ ٹوٹتے ہوئے تارے اور چٹانیں گرتی رہتی ہیں جن کا سائز یا تو گاڑی کے برابر یا پھر ہمارے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. لیکن جو میٹیور اب زمین کی طرف آ رہا ہے وہ تو پہاڑ کی چوٹی سے بھی کافی بڑا ہے، جس کا وزن تقریباً 500 ملین ٹن ہے. اگر یہ ہماری زمین سے ٹکرا گیا تو زمین پوری طرح سے ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور پچھلے کئی مہینوں سے رشیا اور امریکہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیشن اسپیس میں یعنی آسمان میں جا کر بنا رہے ہیں. 1-2 مہینے کے بعد ایک ٹیم ٹوٹتے ہوئے خطرناک تارے کو زمین پر آنے سے روکنے کی کوشش کریں گے. ایسٹروناٹس کی ایک ٹیم اس میٹیور پر پہنچ چکی ہے. ایسٹروناٹس وہ ہوتے ہیں جو آسمان میں جا کر کھوج کرتے ہیں، جہاں پہنچ کر وہ ڈرلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کافی گہرا چھید کرنے کے لیے. وہ اس کے اندر ایک بم لگانا چاہتے ہیں تاکہ دھماکہ کر کے اس میٹیور کے راستے کو بدلا جا سکے، جس میں کہ وہ زمین کی طرف نہ آئے بلکہ وہ کہیں اور مڑ جائے اور زمین تباہ ہونے سے بچ جائے گی. اب جب یہ لوگ ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی اچانک سے ان کی ڈرل کرنے والی مشین پھنس جاتی ہے. لیکن اب انہیں جلد سے جلد واپس جانا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے ہماری زمین پر دن اور رات ہوتے ہیں بالکل اسی طرح میٹیور کا ایک حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے جبکہ دوسرا حصہ دوسری سائڈ پر ہوتا ہے. لیکن جو وہ حصہ جہاں پر سارے ایسٹروناٹس ہیں جو وہ سورج کے پاس آئے گا تو تب یہاں کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ان سبھی کی موت ہو جائے گی. خیر یہ لوگ اس جگہ پر اس بم کو لگا ہی دیتے ہیں، لیکن اب وہ میٹیور سورج کی طرف آ ہی چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور جو گیسیں یہاں پر جمع ہوتی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے یہاں پر پھٹنے لگے. اب انہی میں سے ایک ایسٹروناٹ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ اور روشنی بہت ہی تیز ہے. تو اب یہ سارے لوگ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے اسپیس شپ تک جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. لیکن تبھی ایک ایسٹروناٹ کے پیر کے نیچے ایک دھماکہ ہو جاتا ہے جس سے کہ وہ آسمان میں کہیں پر گم ہو جاتا ہے. بچے ہوئے سارے لوگ اپنے اسپیس شپ میں آ کر یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور جب یہ اس میٹیور سے کافی دور آ جاتے ہیں تو یہ وہاں پر ایک دھماکہ کر دیتے ہیں. لیکن اس سے ان کا اسپیس شپ کافی ہل جاتا ہے اور تھوڑا سا خراب بھی ہو جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر ان کا یہ مشن جس کے لیے یہ یہاں پر آئے تھے پوری طرح سے فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ دھماکہ کرنے کے بعد وہ میٹیور اب 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور اب یہ دونوں حصے ہی زمین کی طرف آ رہے ہیں.
मेटियोर का एक हिस्सा काफी बड़ा होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, वो उससे काफी छोटा होता है। अब प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलती है तो उनको काफी बुरा भी लगता है और काफी दुख भी होता है। कहते हैं कि छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा और उसके गिरने से समंदर में जो लहरें पैदा होंगी वो कोई छोटी मोटी नहीं, कोई आम नहीं, बल्कि वो काफी बड़ी होंगी, जो कि बिल्कुल एक सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि इस खतरे से हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। जब से इस मेटियोर के बारे में पता चला है तभी से हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। हमने बहुत गहरी गहरी सुरंगें और गुफाओं को बनाया है जिसके अंदर तकरीबन 2 साल का राशन है, यानी कि खाने पीने का और रहने का सामान मौजूद है। 50 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र होगी उसे अपने साथ नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उसको मरने के लिए यहीं पर ही छोड़ दिया जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ इस पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाता है जिसमें कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ऐसा गवर्नमेंट इसीलिए करती है ताकि पूरे मुल्क में भगदड़ न मच जाए। अब यहाँ लियो की फैमिली के पास कॉल आती है जिनमें उनको बताया जाता है कि आप लोगों को भी पहले से ही इस प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया था, वो भी सिर्फ लियो की वजह से, क्योंकि लियो ही वो इंसान था जिसने सबसे पहले इस मेटियोर को देखा था। अब यहाँ पर लियो की दोस्त की फैमिली भी होती है जिनको के इस प्रोग्राम के लिए नहीं चुना जाता, इसलिए लियो अपनी दोस्त के पास जाता है और उसको वो 2 अंगूठियाँ दिखाता है और कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगी, जिसके बाद तुम हमारे साथ जा पाओगी और मैंने गवर्नमेंट से भी बात कर ली है, ये दोनों शादी कर लेते हैं। जहाँ कुछ वक्त के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की बसें आती हैं जो कि उन लोगों को जिन्हें चुना गया है उन्हें यहाँ से किसी महफूज जगह पर ले जा रहे हैं, जिनमें लियो की दोस्त जो कि अब उसकी बीवी होती है उसका नाम तो होता है लेकिन उसके माँ बाप का नहीं होता। हालांकि लियो ने इस बारे में गवर्नमेंट से बात भी की थी और उसको ये बताया गया था कि उसकी दोस्त के माँ बाप का भी इसमें नाम जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर उन दोनों का नाम नहीं होता, जिसकी वजह से उसके माँ बाप नहीं जा सकते। लेकिन उनकी बेटी अपने माँ बाप के बगैर नहीं जाना चाहती। हालांकि लियो उसको समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती, बल्कि यहीं पर ही अपने माँ बाप के साथ रुक जाती है, जहाँ अब लियो को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। हर तरफ ये खबर फैल चुकी होती है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए हर तरफ अफरा तफरी का लूट मार का माहौल बन जाता है। हालांकि कर्फ्यू भी लगाया गया है लेकिन कोई भी किसी भी रूल पर नहीं चल रहा। अब लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे 2 साल तक रहना होगा, लेकिन यहाँ पर लियो अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त को लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अब सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं, यानी जब छोटा मेटियोर हमारी जमीन से टकरा जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स की उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिनकी वजह से ही इस मेटियोर के 2 टुकड़े हुए हैं। अब यहाँ पर वो सभी ये प्लान बनाते हैं कि हम लोग जमीन पर वापस नहीं जाएंगे बल्कि हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पर मेटियोर का बड़ा वाला टुकड़ा है, क्योंकि अभी भी इनके पास 4 बड़ी बड़ी मिसाइल हैं और इनके मुताबिक अगर ये मिसाइल से चारों धमाके वहाँ पर मेटियोर पर कर दें तो इससे उस बड़े से मेटियोर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और इससे जमीन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। वजह ये है कि वहाँ पर जाते जाते ही इनका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग अपनी जान देने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए मान ही जाते हैं। इसीलिए ये अपना स्पेसशिप लेकर बड़े वाले मेटियोर की तरफ जाने लगते हैं। उधर जमीन पर हम देखते हैं कि लियो अपने दोस्त के घर पर पहुंच जाता है जहां वो उसे ढूंढता है, लेकिन घर पर उसकी दोस्त नहीं होती क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा चुकी होती है। इसलिए अब लियो अपना बाइक लेकर अपने दोस्त को ढूंढने लगता है। अब उधर सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक होती है क्योंकि लोग अपने घरों से जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि वो जा कहाँ पर रहे हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जो कि उनके लिए महफूज हो। अब यहाँ लियो भी अपने दोस्त को ढूंढ ही लेता है जहाँ उसके माँ बाप उसे लियो के साथ जाने के लिए मना ही लेते हैं। लियो के साथ चले ही जाती है। इसके बाद हमें वही रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका होता है, क्योंकि इसका नाम भी उस लिस्ट में आ चुका था। लेकिन यहाँ वो रिपोर्टर खुद नहीं जाती बल्कि वो अपनी जगह पर अपने दोस्त और उसके छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है, जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है जिनसे कि वो काफी टाइम से नाराज थी, लेकिन अब अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में
उसने अपने डैड के साथ सारे गिले शिकवे, सारी नाराजगियां खत्म कर ली हैं। इसीलिए वो अपने डैड के गले से लग जाती है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि छोटा मिटियोर जमीन तक पहुंच चुका है। वो आग की तरह जलता हुआ समंदर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो समंदर में गिरता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि काफी ऊंची ऊंची लहरें पैदा होने लगती हैं। और वो रिपोर्टर जो अपने डैड के साथ समंदर के किनारे खड़ी होती है, वो अब देखते ही देखते हमेशा के लिए उन लहरों में समा जाती है, यानी कि उसके और उसके डैड की मौत हो जाती है। पानी की वो बड़ी बड़ी लहरें शहर में भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहर के शहर तबाह होने लगते हैं। अब लियो अपने दोस्त को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद में आसमान में एस्ट्रोनॉट्स की वो टीम दिखाई जाती है, जो कि अब बड़े मिटियोर की तरफ जा रहे होते हैं। वो सभी के सभी अपनी अपनी फैमिली से बातें कर रहे होते हैं अपने आखिरी वक्त में। अब जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए काफी दुखी लम्हात होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी भी अपनी फैमिली से न मिल सकेंगे और न ही उनकी आवाज सुन सकेंगे। अब कुछ ही टाइम के बाद उनकी स्पेसशिप, जिसके अंदर 4 मिसाइल हैं, वो देखते ही देखते उस बड़े मिटियोर से टकरा जाता है और इस टक्कर की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से उस बड़े से मिटियोर के काफी छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं, जो जैसे ही जमीन में दाखिल होते हैं तो वो जलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब इनसे जमीन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद लियो, उसकी दोस्त और भी बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो सभी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ऊपर नहीं आ सकता और वो यहाँ से आसमान में होती हुई उस आतिशबाजी का माहौल देखते हैं। अगर वो बड़ा सा मिटियोर जमीन से टकरा जाता तो इससे जमीन पर हर तरह के जानदार, यानी कि जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे खत्म हो जाते, जिस तरह आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे और जमीन पर सिर्फ वही लोग बचते जो सुरंगों में और गुफाओं में छुपे हुए हैं। हालांकि लाखों लोग सुनामी की वजह से मारे गए, जिसकी वजह से अब पूरा शहर तबाह बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर अब एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ से सारा पानी वापस चला ही जाता है। इसके बाद रेजिडेंट कहते हैं कि हम अपने हीरोज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही जमीन पर इंसान बच पाए हैं। हर मौके पर, हर जगह पर हम उनको याद करेंगे, अपने बच्चों को भी अपने हीरोज की कहानियाँ सुनाएंगे। इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।